Hi dear friends, welcome to your Oxford classes by Sunil sir. Today we are going to learn about English grammar topic. So let's start. So first of all I would like to introduce these topics. So first one is parts of speech, second one is tenses, kinds of sentence, types of sentence, articles, determiners, modal auxiliaries, question tag, change the voice, direct and indirect speech, figure of speech, clauses, degrees of comparison, subject and predicate, subject verb agreement, transitive intertransitive verbs, infinitive, participle and gerund, homophones and homographs, suffix, prefix and affix. So let's start our first topic, that is parts of speech. So there are 8 types of parts of speech: noun, adjective, pronoun, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. So first one is noun. So I would like to tell you what is meant by noun. So noun is a word which is used as the name of a person, place, thing. Okay, so here we have some examples like Akbar was a great king. So in this sentence here Akbar is a name of a person, so we can call Akbar is a noun. In second sentence, Kolkata is on the banks of river Hooghly. So here Kolkata is a name of a place, so Kolkata is also a noun. So second example is the rose smells sweet. So here rose, we have given a name to a thing, that is rose, so here rose is a noun. Fourth example, the sun shines bright. So here sun, we give a name to a particular thing, that is sun. Okay, so here sun is a noun. Next example, his courage on his honor. So here courage is a noun. So we can take a note that the word thing includes. तो हम इसमें क्या कह सकते हैं कि थिंग्स जो है उसमें क्या कह सकते हैं, देखो ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन सी, हियर, टेस्ट, टच और स्मेल, एंड समथिंग दैट वी कैन थिंक, जिसके बारे में हम सोचते हैं बट कैन नॉट परस्यू बाय द सेंस, जिसके बारे में हम सोचते हैं लेकिन उसको परस्यू नहीं कर सकते, उसको पा नहीं सकते हम सेंस के थ्रू, तो उसको हम कहेंगे नाउन. So our next part of speech is adjective. So adjective मतलब क्या होता है? Adjective is a word which used to add something to the meaning of a noun. और हम उसको कह सकते हैं कि a word which gives more a word which gives or tells about noun. Okay, or which gives more information about noun and pronoun. That word we can call as adjective. So here he is a brave boy. So in this sentence brave is a quality of that boy. Boy is a noun. Okay, so brave, here brave is a quality of that boy. तो हम क्या कह सकते हैं कि जो लड़का है उसकी क्वालिटी क्या है यहाँ पे, बॉय, तो इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, इसलिए ये ब्रेव क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव. सेकंड एग्जांपल, देयर आर 20 बॉयज इन दिस क्लास. ओके, तो हियर बॉयज और क्लास ये क्या है, नाउन है, ठीक है, लेकिन देयर आर 20 बॉयज, तो ये 20 क्या है यहाँ पे, नंबर, उनके बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है, कितने बॉयज है, 20, तो ये 20 क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव. सो नेक्स्ट वन इज प्रोनाउन. प्रोनाउन मतलब क्या होता है, द वर्ड विच गिव्स और द वर्ड विच यूज इंस्टेड ऑफ नाउन. नाउन की जगह पर हम उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, प्रोनाउन. ओके, तो यहाँ देखो, सो लेट्स सी हियर, जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल. ओके, सो जॉन जो है वो क्या है यहाँ पे, नाउन है, ठीक है. अब जॉन के लिए कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पे, देखो ही, ठीक है, ही क्या है, नाउन है, सॉरी प्रोनाउन है, जो यूज़ हुआ है नाउन, कौन है यहाँ पे, जॉन, इसके लिए यूज़ हुआ है यहाँ पे, इसलिए ही क्या होगा, प्रोनाउन. सेकंड एग्जांपल देखो, द बुक्स आर वेयर
यू लेफ्ट देम, जो बुक्स है ये क्या है यहाँ पे नाउन है, तो बुक के लिए यूज़ हुआ है यहाँ पे देखो देम, तो इसीलिए यहाँ पे प्रोनाउन कौन सा होगा, देम इज़ अ प्रोनाउन। ओके, सो फोर्थ वन इज वर्ब। तो वर्ब मतलब क्या होता है, अ वर्ड विच शोज एन एक्शन और द वर्ड विच यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट, इसको हम क्या कहेंगे, वर्ब। मतलब जो एक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या एक्शन हो रही है उसको बता रहा है, ऐसा वर्ड क्या होता है, वर्ब। लेट्स सी हियर, द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कज़न। ठीक है, एक लड़की ने उसके कज़न को खत लिखा, तो यहाँ पे एक्शन कौन सी हो रही है, लिखने की। ठीक है, लिखा, ये क्या हुआ यहाँ पे फिर, वर्ब। नेक्स्ट देखो, कोलकाता इज़ अ बिग सिटी। कोलकाता इज़ अ बिग सिटी, तो यहाँ पे वर्ब नहीं आया है कोई भी, लेकिन यहाँ पे देखो टू बी का फॉर्म आया है इज़, इसीलिए इज़ क्या है यहाँ पे, वर्ब। नेक्स्ट देखो, आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स, तो यहाँ पे भी टू बी का फॉर्म आया है आर, तो ये क्या हुआ, वर्ब। हम और एग्जांपल ले सकते हैं, देखो एग्जांपल लाइक आई एम ड्रिंकिंग अ वाटर, सो हेयर ड्रिंकिंग ये क्या हुआ, वर्ब हुआ। ओके, आई गो टू स्कूल, यहाँ पे गो क्या है, वर्ब है, तो जो भी एक्शन बता रहा वर्ड है, एक्शन बताने वाला वर्ड, उसको हम क्या कहेंगे, वर्ब। सो नेक्स्ट इज एडवर्ब। ये एडवर्ब के ही नाम में उसकी डेफिनेशन छुपी है, ऐड मतलब क्या होता है, ऐड करना या फिर उसमें अधिक जानकारी। ओके, अधिक ऐड करना। ओके, तो देखो, अ वर्ड विच गिव्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्ब, उसको हम क्या कहेंगे, एडवर्ब। देखो, एडवर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग, मैंने अभी बताया था आपको क्या करना है हमें, ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ठीक है, मतलब जो क्या करता है, वर्ब के बारे में अधिक इन्फॉर्मेशन देता है, उसको हम क्या कहेंगे, एडवर्ब। एग्जांपल देखो इसका, ही वर्कड द सन सॉरी ही वर्कड द सम क्विकली, ही वर्क द सम क्विकली, यहाँ पे देखो ही वर्कड, यहाँ पे वर्क क्या हुआ, काम कर रहा है। ओके, तो ये वर्ब हुआ, तो वर्ब के बारे में कैसे किया उसने, क्विकली, तो क्विकली क्या हुआ, कैसे किया, मतलब एक्शन कैसे हो रही है बताने वाला वर्ड कौन सा है हमारा, एडवर्ब, इसलिए ये क्विकली क्या हुआ यहाँ पे, एडवर्ब। नेक्स्ट देखो, दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ओके, तो इज़, ओके ये क्या है, वर्ब है, इसके बारे में फ्लावर कैसा है, तो कैसा है वो, ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या है अपना, एडवर्ब। नेक्स्ट देखो, शी प्रोनाउंस्ड द वर्ड क्वाइट करेक्टली, तो यहाँ पे शी प्रोनाउंस्ड, प्रोनाउंस क्या हुआ, वर्ब, और कैसे प्रोनाउंस किया उसने, करेक्टली। ओके, तो करेक्टली यहाँ पे क्या हुआ फिर, एडवर्ब। नेक्स्ट देखो, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के वर्ड में ही उसका मीनिंग है, पोजिशन मतलब क्या होता है, जगह, और प्री मतलब क्या, पहले। ओके, तो ऐसी जगह के पहले आने वाला वर्ड, मतलब एक जगह है उसके पहले आने वाला वर्ड, तो क्या कहेंगे हम, मतलब एक जगह के पहले आने वाला वर्ड उसको क्या कहेंगे हम, प्रीपोजिशन। और जो नाउन और प्रोनाउन के पहले ऐड किया जाता है उसको भी हम प्रीपोजिशन कह सकते हैं। अब देखिए डेफिनेशन क्या दिया हमें, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड with a noun or pronoun to show how the person or thing denoted by the noun or pronoun stands in relation to something else। अब ये बहुत ही हार्ड डेफिनेशन हो गई, मैं आपको एक ईजी डेफिनेशन बताता हूँ उसकी, अब जो मैंने आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। देखो, अ वर्ड विच ऐड बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन, अ वर्ड विच ऐड बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन, that word we can call as preposition। okay, so let's see the examples। there is a cow in the garden, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें नाउन और प्रोनाउन ढूंढना है। ओके, सो हियर गार्डन क्या है, नाउन है, और काऊ भी क्या है, नाउन है। ओके, देर इज अ काऊ इन द गार्डन। ओके, तो हियर यहाँ पे देखो मैंने बताया था आपको डेफिनेशन में कि नाउन और प्रोनाउन के पहले आने वाला वर्ड, यहाँ पे देखो अ काऊ नाउन है और द गार्डन भी क्या है, नाउन है। ठीक है, अब देखो अ काऊ, इससे पहले आया कौन सा वर्ड, इज क्या होता है, टू बी का फॉर्म है, इसलिए वो प्रीपोजिशन नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो द गार्डन के पहले क्या आया है, इन। ओके, तो इन क्या है हमारा, प्रीपोजिशन। सो लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल, द गर्ल इज
फॉन्ड ऑफ म्यूजिक मतलब लड़की को गाना गाना पसंद है। ओके, सो हियर द गर्ल इज अ नाउन और फॉन्ड ये तो वर्ब होगा और म्यूजिक ये भी क्या है, नाउन है। तो द गर्ल के पहले कोई आया क्या वर्ड, नहीं, इसलिए यहाँ पे नहीं देखेंगे हम। अब यहाँ पे देखो म्यूजिक ये भी क्या है, नाउन है, उसके पहले क्या आया है, ऑफ, इसीलिए ऑफ क्या होगा यहाँ पे, प्रीपोजिशन। होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट एग्जांपल, अ फेयर लिटल गर्ल सैट अंडर अ ट्री। ओके, मतलब एक थोड़ी मतलब एक गोरी लड़की एक पेड़ के नीचे बैठी है। ओके, सो अ फेयर लिटिल गर्ल, ओके, लिटिल गर्ल या फिर गर्ल ये क्या है, नाउन है, और अ ट्री ये भी क्या है, नाउन है। अब देखो लिटिल गर्ल, फेयर ये सब क्या है, नाउन है, उसके पहले आएगा कुछ नहीं। अब अ ट्री उसके पहले क्या आया, अंडर, इसलिए अंडर क्या हुआ हमारा, प्रीपोजिशन। अब नेक्स्ट देखो कंजंक्शन। सो कंजंक्शन इज व्हाट, टू जॉइन वर्ड और सेंटेंस। ओके, कंजंक्शन इज वर्ड यूज टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंस, मतलब किसी शब्द को या फिर किसी वाक्य को वो क्या करता है, ज्वाइन करता है। ओके, उसको क्या कहेंगे हम, कंजंक्शन। सो हियर सम एग्जांपल्स आर गिवन, रामा एंड हरी आर कजन्स। ओके, राम एंड हरी क्या है, कजन्स एक दूसरे के। तो यहाँ पे देखो राम एंड हरी ये क्या दो वर्ड से उसको ज्वाइन किया है एंड ने, इसलिए एंड क्या हुआ यहाँ पे, कंजंक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, 2 and 2 मेक 4, 2 और 2 मिलकर क्या होते हैं, 4। यहाँ पे क्या है, एंड 2 और 2। ओके, ये भी क्या वर्ड्स है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, आई रैन फास्ट बट मिस द ट्रेन। मैं बहुत भागा लेकिन मेरी ट्रेन मिस हो गई, फिर मैंने ट्रेन मिस कर दी। यहाँ पे देखो आई रैन फास्ट ये क्या है, फर्स्ट सेंटेंस है, और सेकंड क्या है, मिस द ट्रेन। लेकिन इसमें देखो ये जो बट है उसने क्या किया, इस दो सेंटेंस को ज्वाइन किया, इसीलिए बट क्या हुआ आपका, कंजंक्शन। सो लास्ट वन इज इंटरजेक्शन। सो इंटरजेक्शन मतलब क्या है, इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स। सडन फीलिंग्स कौन कौन सी होती है हमारी, एंगर होता है, प्रेज होती है, सैडनेस, हैप्पीनेस। ओके, तो इसको एक्सप्रेस करने वाला वर्ड क्या होता है आपका, इंटरजेक्शन। एग्जांपल देखो, हुर्रा वी हैव ओन द गेम। तो हुर्रे मतलब क्या आपका, हैप्पीनेस शो कर रहा है, इसलिए हुर्रे क्या है आपका, इंटरजेक्शन वर्ड। नेक्स्ट देखो, अलास शी डेड, यहाँ पे क्या बता रहा है आपका, सॉरो या फिर दुख, आपका जो भी सॉरो है, आपकी जो भी सैडनेस है वो बता रहा है ये वर्ड अलास, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, इंटरजेक्शन वर्ड। अब इंटरजेक्शन वर्ड को आप आइडेंटिफाई करने के लिए इजी ट्रिक से देखो, क्या यहाँ पे इंटरजेक्शन मार्क्स यूज होता है, इसलिए उसको क्या कहेंगे आप, इंटरजेक्शन। ओके, लेट्स लुक एट हियर। जो नाउन है उसके भी 8 टाइप्स होते हैं, लाइक कॉमन नाउन, कंपाउंड नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, abstract नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन। ओके, सो उसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे। अब ये जो है प्रोनाउन, उसके भी 3 टाइप्स होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड इंडिफिनिट प्रोनाउन। इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। सो होप यू गाइज एंजॉय दिस सेशन। सो सी यू इन नेक्स्ट लेसन, बाय, टेक केयर।